Hello everyone. Now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is MIS, structure of MIS, that means structure of management information system, along with concept of school mapping at secondary level. The particular topic related to MET semester 3 unit number 3 and paper number 9B, that is सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ एमएड सेमेस्टर 3 के अंतर्गत स्पेशल पेपर 9B, दैट इज़ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत यूनिट 3 में स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंसेप्ट ऑफ स्कूल मैपिंग, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की संरचना, साथ ही साथ विद्यालय मानचित्रण की अवधारणा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। आज मुख्य रूप से फिजिकल कंपोनेंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के, साथ ही साथ ये कैसे काम करते हैं, उसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में बताऊंगा। जब फिजिकल कंपोनेंट्स की बात करें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, कहने का तात्पर्य ये एक ऐसी प्रक्रिया, कंप्यूटराइज सिस्टम, जिसमें कि पूरे व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को स्टोर करके, यानी संग्रह करने का एक आधार, एक प्रणाली, जिसमें कि आगे की व्यवस्थाओं को जान सके, समझ सके और क्रिया को, यानी क्रिया आधारित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके, यानी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं कैसे संपन्न हों, इसके लिए एक आधार, एक अच्छा संसाधन है। जहाँ तक स्कूल मैपिंग एट सेकेंडरी लेवल की बात है, तो स्कूल मैपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सर्वप्रथम फ्रांस में शुरू हुई थी। इसका आधार स्पष्ट है कि किस क्षेत्र में, किस हैबिटेट में, किस बस्ती में विद्यालय है, कहाँ विद्यालय नहीं है। विद्यालय है तो उसकी अवस्था, उसकी व्यवस्था किस प्रकार की है, शिक्षकों की संख्या, संसाधन की कमी, TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्लास जो है वो संसाधन युक्त है नहीं है, इन सभी चीज़ों को हम व्यवस्थित तरीके से जान सके और आकलन करके आगे की व्यवस्था को समझ सके, जान सके। कहने का तात्पर्य विद्यालय मानचित्रण, स्कूल मैपिंग एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विद्यालय की क्या स्थिति है, उसको समझना, जानना और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्यालय की व्यवस्था करना और समाज के वैसे वंचित जो लोग हैं, जो कि विद्यालय से दूर हैं, उन्हें भी विद्यालय के साथ जोड़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण आधार है। मैं अब आपको इन सभी चीज़ों को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class MEd semester 3 paper 9B secondary and higher secondary education. First, structure of management information system, MIS. First point, management information system is generally defined as an integrated user machine system for providing information to support operations, management and decision making functions in an organization. Second point, MIS, that is management information system, is a computerized system of providing information to the manager so that they can take long term and short term decision in an organization. MIS is organized system which consists of people, hardware and communication network that collect data and transform that data into information. Next point, it helps management in their decision making process by providing useful information to them. Next point, it is a tool of communication between top level management and employees. Next point, MIS helps schools to keep records of all the peoples in their school.
Next point, at their most basic, they contain the address, date of birth, contact details, and other simple data that a school would need to hand. And last, however, an MIS can provide extremely useful information and data for school. Now, MIS structure based on physical components. Structure of MIS may be understood by looking at the physical components of the information system in an organization. The physical components of an organizational information system may be hardware, software, database, manual procedures, and operating personnel. Number 1, hardware. Hardware refers to the physical data processing equipments and peripheral devices. For example, CPU, monitor, keyboard, printer, drives, tapes, communication devices, etc. Software is a broad term given to the instruction or programs that direct the operating of the hardware. Software could be of two types, that is software system and application software. Now next, database. The database consists of all data utilized by application software. Data is stored in files. Procedures. Formal operating procedures which are required to operate a system, such as manuals, are also regarded as physical elements. Next one, operating personnels, in sense that is personnel like computer operators, computer programs, system analyst, system manager, etc. are the operating people of the information system. Input and output. Various physical inputs and output from the information system existing in the forms like printout, reports, etc. All things helpful for the working system of the management information system. Now, school mapping at secondary level. First, concept of school mapping. First point, school mapping is a process for collecting and recording curriculum related data that identifies core skills and content taught, processes employed, and assessments used for each subject area and grade level. Second point, the term school mapping seemingly implies that the exercise is confined to location of school. This is not true. Next point, school mapping is an exercise useful to rationally allocate educational facilities of any type related to any level of education. According to the resources or data, school mapping originated in France in 1963. Next point, school mapping is a normative approach to the micro planning of school location. Next point, it is an essential planning tools to overcome possibilities of regional inequalities in provision of educational facilities. It means that number 1, school mapping incorporates spatial and demographic dimension into the educational planning process, and second, location of educational facilities depends on the norms and standard prescribed by the authorities. Now next one, school mapping has facilitate following functions. School functions, that means number 1, first point, create the necessary conditions for achieving universal primary and secondary education. Second function, increase access for female and members of other traditionally underrepresented socio-economic groups. Number 3, promote the equitable distribution of educational benefits within the between different region and populations. Number 4, improve the quality of educational efforts. Number 5, optimize the efficient use of existing capital, human and financial resources. Number 6, organize, coordinate and rationalize efforts at technical, vocational and post-secondary education.
दैट। अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। प्रबंधन सूचना प्रणाली की संरचना, सर्वप्रथम स्ट्रक्चर के बारे में। प्रबंधन, फर्स्ट पॉइंट, प्रबंधन सूचना प्रणाली को सामान्यतः एक संगठन में समर्थन, संचालन, प्रबंधन और निर्णय लेने के कार्यों की जानकारी प्रदान करने के लिए एक एकीकृत उपयोगकर्ता मशीन प्रणाली के रूप में कहा जा सकता है या परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रबंधक को जानकारी प्रदान करने की एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली है ताकि वे किसी संगठन में दीर्घकालीन और अल्पकालीन निर्णय ले सकें। MIS यानी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक संगठित प्रणाली है जिसमें लोग, हार्डवेयर और संचार नेटवर्क होते हैं जो डेटा एकत्र करते हैं और उस डेटा को सूचना में बदल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि यह उन्हें उपयोगी जानकारी प्रदान करने, उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रबंधन को मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह शीर्ष स्तर के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच संचार का एक उपकरण है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंधन सूचना प्रणाली विद्यालयों को अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को रिकॉर्ड रखने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट, साथ ही साथ उनके पता, जन्म तिथि, संपर्क विवरण और अन्य सरल डेटा होते हैं जो एक स्कूल को सौंपने की आवश्यकता होती है जिससे कि स्कूल को मदद मिलती है। हालांकि एक MIS स्कूलों के लिए अत्यंत उपयोगी जानकारी और डेटा प्रदान कर सकता है। अब भौतिक घटकों के आधार पर MIS संरचना यानी प्रबंधन सूचना प्रणाली, किसी संगठन में सूचना प्रणाली के भौतिक घटकों को देखकर MIS की संरचना को समझा जा सकता है। एक संगठनात्मक सूचना प्रणाली के भौतिक घटक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, मैनुअल प्रक्रिया और ऑपरेटिंग व्यक्ति हो सकते हैं। इन घटकों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। सर्वप्रथम हार्डवेयर अर्थात भौतिक डेटा प्रोसेसकरण उपकरण और परिधीय उपकरणों को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ड्राइव, टेप संचार उपकरण आदि। सॉफ्टवेयर अर्थात एक व्यापक शब्द है जो कि निर्देश या प्रोग्राम को दिया जाता है जो हार्डवेयर का संचालन को निर्देशित करता है। सॉफ्टवेयर दो तरह का हो सकता है जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, डेटाबेस में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी डेटा होते हैं। डेटा फाइलों में संग्रहित होते हैं। प्रक्रियाएं, औपचारिक संचालन प्रक्रियाएं जो कि एक प्रणाली को संचालित करने के लिए आवश्यक होती है, जैसे मैनुअल को भौतिक तत्व में भी माना जाता है। लास्ट में संचालन कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह क्रमिक कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम मैनेजर इत्यादि सूचना प्रणाली का ऑपरेटिंग होते लोग हैं। इनपुट और आउटपुट सूचना प्रणाली से विभिन्न भौतिक इनपुट और आउटपुट, प्रिंट आउट, रिपोर्ट आदि जैसे रूपों में भी मौजूद हैं। अब मैं स्कूल मैपिंग, सर्वप्रथम विद्यालय मानचित्रण की अवधारणा के बारे में बता दूं। विद्यालय मैपिंग पाठ्यक्रम संबंधी डेटा एकत्र करने के रिकॉर्ड करने की एक प्रक्रिया है जो कि प्रत्येक विषय क्षेत्र या ग्रेड स्तर के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य कौशल, सामग्री, कार्यरत प्रक्रियाओं, मूल्यांकन की पहचान करती है। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट था ये। सेकंड पॉइंट, विद्यालय मैपिंग शब्द का अर्थ है अभ्यास स्कूलों के स्थान तक ही सीमित है, अर्थात यह सच नहीं है। स्कूल मैपिंग एक व्यायाम है, यानी विद्यालय मानचित्रण एक व्यायाम है। शिक्षा के किसी भी स्तर से संबंधित किसी भी प्रकार के शैक्षिक सुविधाओं को तर्कसंगत रूप से आवंटित करने के लिए उपयोगी है, जो कि रिसोर्सेस, नेक्स्ट पॉइंट, जो कि संसाधन उपलब्ध है या जो रिकॉर्ड कहता है उस अनुसार 1963 में फ्रांस में स्कूल मैपिंग यानी विद्यालय मानचित्रण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय मैपिंग यानी मानचित्रण विद्यालयों के स्थानों के सूक्ष्म नियोजन के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण है। यह शैक्षिक सुविधाओं के प्रावधान में क्षेत्रीय असमानताओं की संभावनाओं को दूर करना एक आवासन नियोजन उपकरण के अंतर्गत आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्यालय मानचित्रण शैक्षिक योजना में स्थानिक और जनसांख्यिकीय आयाम शामिल करता है। सेकंड में कि शैक्षिक सुविधाओं का स्थान निर्धारित मानदंडों और मानकों पर भी निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालय मानचित्रण का उपयोग जांच और कुशल और सामान्य वितरण को सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है। बड़े पैमाने पर सुधार या महत्वपूर्ण विस्तार के लिए
विद्यालय प्रणालियों के भीतर और बीच एक संसाधन शैक्षिक प्रणाली का जगह लेता है। अब स्कूल मैपिंग के कुछ कार्य 6 कार्य हैं। नंबर 1, सार्वभौमिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त तैयार करना। दूसरा, महिलाओं अन्य पारंपरिक रूप से सामाजिक आर्थिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के लिए पहुंच बढ़ाए जाएं। नेक्स्ट, विभिन्न आबादी और क्षेत्रों के भीतर और शैक्षिक लाभों के समान वितरण को बढ़ावा देना। शैक्षिक प्रयासों की गुणवत्ता में सुधार करना। मौजूदा पूंजी, मानव और वित्तीय संसाधन के कुशल उपयोग का अनुकूलन की जैसा तैयार करना। लास्ट में, तकनीकी, व्यावसायिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रयास को व्यवस्थित करना, समन्वय और युक्तिकरण करना शामिल है। अगले क्लास में इसके आगे के प्रकरण यानी आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।